हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं 10वीं क्लास की पंजाबी की बुक ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। इस विच आपां ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ जी ਦੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ कर ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਾਂਗੇ। पिछली वीडियो तक आपां ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ पूरे कर ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ जी ਦਾ। श्लोक नंबर 5। मूर्ख नौ असवारी तो लैके एव घर तक। फिर गल करांगे आपां प्रसंग की। प्रसंग। मूर्ख नौ असवारी हाथी घोड़ियां पंडित पैर पाइंदे पाटे जोड़ियां करदे सुंगड़ मजूरी मूर्ख जाए घर वजीदा कौन साहिब नूं आखे इयों नाहीं इव कर। तां पहला गल करांगे आपां प्रसंग दी। ए काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ जी दे श्लोक मूर्ख नौ असवारी विचों लिया गया है। विचों लिया गया है। इस अपने श्लोक विच वजीद जी ने रब की मर्जी अंदर अपने श्लोक अंदर वजीद जी ने रब की मर्जी अंदर रब की मर्जी अंदर जीवां उपर हो रही मेहरां अते बख्शिशां जीवां उपर हो रहियां मेहरां अते बख्शिशां अते इस दे उल्ट जिहड़े कहर है कहर दा वर्णन इस दे उल्ट कहर दा जब ते
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਪੰਡਤ ਪੈਰ ਪਾਇੰਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ, ਕਰੇ ਸੁੰਗੜ ਮਜ਼ੂਰੀ ਮੂਰਖ ਜਾਏ ਕਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਵ ਕਰ। ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ, ਵਜੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਪੈਰ ਪਾਇੰਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੁੰਗੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਗੜ ਭਾਵ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ
नौकरी करनी पैंदी है, रोज़गार करना पैंदा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये उस परमात्मा की रजा, उस परमात्मा के भाणे अनुसार हो रहा है। ये उसनों कोई नहीं कह सकता कि परमात्मा तो इस तरह नहीं सगों उस तरह कर। तो ये सी अपना जिहड़ा पंजवां श्लोक। हुण गल करते हाँ आपां 6वें श्लोक की। दुर्योधन बड़ा हंकारी। दुर्योधन वड्डा हंकारी। छेवां दुर्योधन वड्डा हंकारी। प्रसंग मूर्ख नो असवारी की थां ते आपां कर देंगे दुर्योधन बड़ा हंकारी। बाकी आपां उसी तरह ही लिख देंगे। तो दुर्योधन वड्डा हंकारी। प्रसंग एक काव्य टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियां विच दर्ज मियाँ वजीद जी दा श्लोक दुर्योधन बड़ा हंकारी विचों लिया गया है। हुण गल करते हाँ इस श्लोक विच वजीद जी ने रब की मर्जी अंदर जीवां उपर हो रहे जिहड़ियां रहमतां मेहरां बख्शिशां अते उस दे उल्ट जिहड़े हो रहे कहर हुंदे कहरां दा वर्णन करदियां होयां रब्बी भाणे दी बेपरवाही नूं बड़े ही प्रभावशाली तरीके दे नाल सिद्ध कीता है। दुर्योधन वड्डा हंकारी किसे न जानदा, कृष्ण फिरे रिवारी सुलह कराइंदा। देही गिरज न खाही एवें गई सड़ वजीदा, कौन साहिब नूं आखे इयों नाही इव कर। दुर्योधन जो कौरवां दा सब तो वड्डा भरा सी, जिस दी पांडवां दे नाल जंग होई सी। कौरवां दा सब तो वड्डा भरा जिस दी पांडवां दे नाल जंग होई सी। तां व्याख्या की गल करते हाँ। वजीद जी फरमाउंदे हन कि जिहड़ा दुर्योधन है, जिहड़ा युधिष्ठिर दा पुत्र दुर्योधन कोई घट हंकारी नहीं सी। जिहड़ा दुर्योधन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत अहंकार सी। ਉਹ ਆਪਣੇ सामने दूजिਆਂ ਨੂੰ तुच्छ समझदा सी, कमज़ोर समझदा सी, माड़ा समझदा सी भी मेरे तो वड्डा ताकतवर सूरवीर होर कोई नहीं। वो पांडवां दे खात्मे दे हीले करन लगा था। वो पांडवां दा खात्मे दे हीले करन लगा तां कृष्ण जी ने विच पै के उन्हां दोनां दी सुलह करवाती। उन्हां दोनां दी भाव जिहड़ी समस्या सी सुलझाती, सुलह करवाती। सुलह करवाउण दी कोशिश करते हैं कृष्ण महाराज, पर दुर्योधन दे सिर ते मौत गज रही सी क्योंकि वह हंकार नाल भरिया होया सी ते रब दे भाणे अनुसार मौत उसनूं मौत उसनूं जिहड़ी तड़प करना, तड़पा के अते उसदे हंकार नूं तोड़ना चाहुंदी सी।
उस अनुसार भाणे अनुसार मौत नूं जिहड़ी हड़प करना, उसनूं हड़प करन वास्ते ते उसनूं हंकार नूं तोड़न वास्ते, उस दे हंकार नूं तोड़न वास्ते उहदी मौत सिर ते मंडरा रही सी, गज रही सी। बस फिर की सी, पांडवां दे नाल युद्ध विचों मारिया गया अते उस दी जिहड़ी हंकार दी भरी हुई देह सी, जिहड़ी शरीर सी, देह सी हंकारी, उस दे हंकारी दे नाल जिहड़ी लिबड़ी हुई सड़दी गलदी सड़दी लाश गिरजा ने भी नहीं खाधी। जिहड़े गिरज है पंछी है, वो जिहड़े मांस खांदे उन्हां ने भी नहीं खाधी। असल विच ये सब कुछ रब दे भाणे अनुसार हुंदा है। उस परमात्मा नूं कोई नहीं कह सकदा कि तू इस तरह नहीं, सगों उस तरह कर। ये जो कुछ हो रहा है उस परमात्मा दे भाणे अनुसार हो रहा है। तो अपनी 6वीं व्याख्या दोबारा फिर समझते हाँ। वजीद साहिब फरमाउंदे हन कि जिहड़ा दुर्योधन सीगा वो बहुत हंकारी सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई घट हंकार नहीं सी, वो हंकार दे नाल भरिया होया सी। वो अपने सामने दूजिਆਂ ਨੂੰ तुच्छ समझदा सी, माड़ा कमज़ोर समझदा सी। वो अपने आप ਨੂੰ सूरवीर योद्धा अपने आप दे भी हंकार सी। वो पांडवां दे खात्मे दे हिले करन लगा तां कृष्ण जी ने विच पै के सुलह करवाउणा चाही भी वो जिहड़ी समस्या सी कोई उहनूं हल करना चाहिया, पर दुर्योधन के सिर ते मौत गज रही सी, वो सुलह लई तैयार नहीं सी। फिर रब दे भाणे अनुसार मौत उसनूं हड़प करना चाहुंदी सी, हड़पना चाहुंदी सी, पर दुर्योधन जिहड़ा हड़प करना चाहुंदी सी, पर उसका जिहड़ा हड़प करके उसका जिहड़ा दुर्योधन का हंकार तोड़ना चाहुंदी सी मौत सी। बस फिर की सी, फिर उस तो बाद पांडवां दे नाल युद्ध होया, युद्ध के मुकाबलियां दे विचों मारिया गया ते उसकी जिहड़ी हंकार दी भरी हुई वो जी देह सी, ਉਹਦਾ शरीर सी, वो गिरजा भी नहीं खाता। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ हंकार ਦੀ गलदी सड़दी लाश ਨੂੰ गिरजा ने भी मूँह नहीं लाया। वो असल विच जो ये सब कुछ हो रहा सी, ये उस परमात्मा के भाणे अनुसार हो रहा सी। उस परमात्मा नूं ये कोई नहीं कह सकदा कि तू इस तरह नहीं, सगों उस तरह कर। उस परमात्मा दे अगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। जो कुछ भी हुंदा है उस परमात्मा दी रजा, उहदी मेहर, उहदी किरपा दे नाल ही हुंदा है जो कुछ भी हो रहा है। तां दुर्योधन वड्डा हंकारी किसे न जानदा, कृष्ण फिरे रिवारी सुलह कराई। देही गिरज न खाई एवें गई सड़, वजीदा कौन साहिब नूं आखे इयों नाही इव कर। तां ये सी अपनी जिहड़ा 6वां श्लोक। पिछली वीडियो तो लैके पिछलियां 2 वीडियो तो लैके हुण अपनी 3 वीडियो दे विच आपां 6 श्लोक कर लए हन। पूरे आराम नाल विस्तार नाल आपां इन्हां ते चर्चा कीती है। उम्मीद है तुसीं इन्हां नूं ध्यान नाल सुणदे होवोगे ते नाल दी नाल इहनूं नोट भी करदे होवोगे। अपने 6 जिहड़े श्लोक पूरे हुंदे आ, अगली वीडियो दे विच जिहड़े इन्हां दे 2 श्लोक रह गए हैं आपां उन्हां नूं पूरा कर लांगे। उन्ने समय दे विच तुसीं इस नूं ध्यान नाल सुनना, नोट करना, समझना। धन्नवाद।